শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি, দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 61 থেকে আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম 10 আদি 10.61 অনওয়ার্ডস। 61 নম্বর শ্লোক। শিবানন্দের উপশাখা তার পরিকর, শিবানন্দের উপশাখা তার পরিকর, প্রভু ভৃত্য আদি করি চৈতন্য কিঙ্কর, পুত্র ভিত্ত আদি করি চৈতন্য কিঙ্কর, চৈতন্য দাস রামদাস আর কর্ণপুর, চৈতন্য দাস রামদাস আর কর্ণপুর, তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভু ভক্ত সুর, তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত সুর, শিবানন্দ সেনের পুত্র ভৃত্য ও পরিকরের অন্যান্য সদস্যরাও হচ্ছেন তার উপশাখা। फुल फैमिली प्रीचर थे, पूरा फैमिली में उपशाखा है। उपशाखा समझ रहे हैं, वहां से ब्रांच निकला हुआ है। आप में से कौन कौन ज्यादा हो जाए बोलना, मैंने फुल फैमिली डिवोटी, नौकर लोग डिवोटी, हाँ परिकर, मैंने उनका जो पार्षद है उन्होंने अब सबसे ब्रांच निकला है, मैंने सबने मिलकर प्रचार किया है। जाई ना बोझाते पारছি কিনা, আবার পড়ছি, মন দিয়ে শুনুন। শিবানন্দ সেনের পুত্র ভৃত্য ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা, মানে ফ্যামিলি में जितना भी रिलेटिव्स है, হচ্ছেন তার উপশাখা, চৈতন্য বৃক্ষের উপশাখা। শাখা এরা, উপশাখা মানে শাখার থেকে যে উপশাখা বেরিয়েছে, মানে এদের থেকে আরো সব ডিভোটি বেরিয়েছে। তারা সকলেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভৃত্য। হরি বল, বহুত बहुत हाई लेवल फैमिली डिवोटी। एक्चुअली हम में से भी बहुत कम भक्त लोग होगा जिनका फुल फैमिली डिवोटी, और अधिकांश तो यही देखा जाता है एक दो व्यक्ति डिवोटी फैमिली में, एक या दो या एक ही मैक्सिमम देखा जाता है। इनका देखिए, शिवानंद सेन तीन पुत्र चैतन्य दास, रामदास और कर्णपुर। कर्णपुर का और क्या क्या नाम था? पुरीदास था एक नाम, और तो नाम था पुरंदर, ना ऐसे कुछ परमानंद। শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্য দাস কৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছেন। तो ये भी डिवोटी है। बड़ा जो लड़का है, कृष्ण कर्णामृत कौन लिखा? कृष्ण कर्णामृत कौन लिखा? हाँ, बिल्वमगन ठाकुर। ये वही ग्रंथ है, और ब्रह्म संहिता दूसरा ग्रंथ है जो गौरांग महाप्रभु जब दक्षिण भारत गया था, ये दोनों ग्रंथ को उद्धार किया था। तुरंत ये सब याद आ जाना चाहिए। পরবর্তীকালে সেই ভাষ্য সহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ শ্রী সজ্জন তোষণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঠিক আছে, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये मैगजीन लिखते थे, सज्जन तोषणी। অভিজ্ঞদের মতে ইনি চৈতন্য চরিত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রণেতা কবি কর্ণপুর নন। ठीक है, ये बड़ा लड़का कवि कर्णपुर तो छोटा लड़का नहीं है। ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ঠাকুরের মতে কবি কর্ণপুর বলতে সাধারণ যে ধারণা প্রচলিত আছে, তিনি সেই ধারণা অনুযায়ী কবি কর্ণপুর ছিলেন না। এই বড় লড়কা কবি কর্ণপুর না, কবি কর্ণপুর তো ছোট লড়কা। শ্রী রামদাস ছিলেন শিবানন্দ সেনের দ্বিতীয় পুত্র। গৌর গণদেশ দীপিকা উল্লেখ করা হয়েছে যে দক্ষ ও বিচক্ষণ নামে কৃষ্ণলীলায় দুইটি সুখ মানে তোতা পাখি কবি কর্ণপুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চৈতন্য দাস ও রামদাস স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে। हरि बोल, हरि बोल। क्लियर है? भगवान की लीला में दो तोता थे,
শিবানন্দ সেনের তৃতীয় পুত্র পরমানন্দ দাস বা পুরী দাস বা কবি কর্ণপুর অদ্বৈত আচার্য প্রভুর শিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিতের কাছ থেকে কে যেন কাল বলছিল বাবাও নিয়েছে দীক্ষা, না এখানে পুত্রের ব্যাপারে বলা হয়েছে, ইন্দ্রাণী মাতাজি শ্রীনাথ পণ্ডিতের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কবি কর্ণপুর আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু, অলঙ্কার কৌস্তুভ, গৌর গণদেশ দীপিকা ও চৈতন্য চন্দ্র উদয় নাটক আদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা করেছেন। তার জন্ম হয় 1448 শতাব্দে। 1488 থেকে 1498 শতাব্দ পর্যন্ত 10 বছর ধরে তিনি নিরন্তর গ্রন্থ রচনা করেন। কবি কর্ণপুর শিবানন্দ সেনের ছোট পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র। ক্লিয়ার? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? 63 নম্বর শ্লোক। শ্রীবল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত, শ্রীবল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত, শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত। শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত। শ্রী বল্লভ সেন এবং শ্রীকান্ত সেনও ছিলেন শিবানন্দ সেনের উপশাখা। কেননা তারা কেবল তার ভগিনী ছিলেন না, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্তও ছিলেন। আচ্ছা, লেডিজ ভাগিনা, সরি ভাগিনা মানে তো বারবার ভাগিনা আর ভগিনী মানে বোনের ছেলে, ঠিক আছে? তো शिवानंद सेन বোনের 2 ছেলে, श्री बल्लभ सेन और श्रीकांत सेन। ओके, ये भी महाप्रभु का वृक्ष का शाखाएं थे। तात्पर्य, पुरी যাওয়ার পথে যখন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু शिवानंद सेन के तिरस्कार करें, क्यों तिरस्कार किया था नित्यानंद प्रभु? कौन बोल पाएगा? गूगल हाथ उठाइए, पूरा घटना कौन बोल पाएगा? करुणा राधे माता जी बोलिए। एक्चुअली शिवानंद ये लोग जब जा रहे थे फ्रॉम कोलकाता टू पुरी, तो शिवानंद सेन को एक जगह पर, अच्छा कोलकाता तो पुरी, क्या धर्मतला से बस लिया था क्या? अच्छा मतलब वेस्ट बंगाल से पुरी जा रहे थे। हर साल जाते थे नियर रथ यात्रा। तो रास्ते में शिवानंद सेन जी को रुक जाना पड़ा, बिकॉज उनको टोल देना पड़ता था। और उन्होंने सबको कहा आप लोग आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन टोल लेने में थोड़ा देर हो गया और वहां सब कोई बैठे थे, उनको पता नहीं था कहाँ जाना है। एक पेड़ के मतलब जस्ट रास्ते में खाने को नहीं मिला। तो नित्यानंद प्रभु बहुत नाराज हो गए। जब शिवानंद सेन आए तो उनको बाकी लोग नित्यानंद प्रभु नाराज है, नित्यानंद प्रभु को भूख लगा, बहुत भूख लग गया। मेन वही का। हाँ, मेन भूख लग गया और कुछ तो मतलब उनको भूख लग गई, बहुत नाराज हो गए। तो जब शिवानंद सेन आए तो उनको लात मारी उन्होंने, और ये आगे भी कुछ हुआ। हाँ, कर्ज किया कि आप कितनी उसने, उसके पहले ही जब शिवानंद सेन आए नहीं थे, भूख लगी तो प्रभु ने उनके तीनों बेटों को कर्ज किया कि दे विल डाई। तो उनकी वाइफ बहुत रोने लग गई कि इतने बड़े महापुरुष ने कर्ज कर दिया, दे विल डाई। और जब ये वापस आए, जोर से लात मारी कि कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर लेकिन शिवानंद सेन को कोई नाराज नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए। राधर अपनी पत्नी को भी समझाए कि जो होना होगा वो होके रहेगा, और अगर उनके कहने से हो तो और भी अच्छी बात है। रादर वी शुड ऑल गेट दिस सॉर्ट ऑफ, इस तरह के अगर हमें भी मिले ऐसा आशीर्वाद तो वो ठीक है। पत्नी को भी समझाया और सब अरेंजमेंट किया। लेकिन ये जो उनके भगना थे ये बहुत नाराज हो गए इस पर। ये सीधा चले गए चैतन्य महाप्रभु के पास और उनको ये सब जाके बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको थोड़ा आश्वस्ति दी और बाद में फिर ये समझाया अपने डिवोटीज को कि इस तरह से नाराज नहीं होना चाहिए, और हमेशा फिर किसी को साथ देते थे ताकि कोई किसी को रिब्यूक नहीं करे, डांटे नहीं, इसलिए किसी को साथ दे देते। प्रसाद भी खिलाया था ना महाप्रभु? हाँ, ये प्रसाद खिलाया, सब कुछ किया था उन्होंने। जस्ट बिकॉज वो पीछे रह गए थे इसलिए इनको बता नहीं सके कहाँ जाना है, कहाँ क्या अरेंजमेंट है। सब कुछ था, सब कुछ किया था उन्होंने,
बट पीछे रहने के कारण वो एक गैप सा हो गया है तो इसलिए। एक जन था जो जिनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, कौन था वो नाम? थोड़ा ढूंढ के निकालिए श्लोक, महामंजरी माता जी, जो जाके आ, कंप्लेन किया था महाप्रभु को। भांजा जो था श्रीकांत। हाँ, श्रीकांत ना, हाँ अच्छा, श्रीकांत श्री वल्लभ नहीं, कोचर। श्रीकांत सेन, हाँ श्रीकांत सेन। हालांकि ये भी पास टाइम है, लोग क्योंकि 60 लॉर्ड जन चाहते है। तो अपना अरेंजमेंट कर सकते थे, बट जस्ट इट इज ए पास टाइम, एक लीला है जो हम लोग करते हैं। পুরীজার পথে যখন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু শিবানন্দ সেনকে তিরস্কার করেন, তখন শিবানন্দ সেনের দুই ভাগিনা সেই দল ত্যাগ করে জগন্নাথ পুরীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। আচ্ছা, দোনোই ইয়া লিখা হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই দুইটি বালকের মনোভাব অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং তার সেবক গোবিন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শিবানন্দ সেন না আসা পর্যন্ত তাদের দুইজনকে যেন প্রসাদ দেওয়া হয়। হরে কৃষ্ণ। রথযাত্রার সময় এই দুই ভাই মুকুন্দ দত্তের কীর্তন দলে থাকতেন। ঠিক আছে, গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে কাত্যায়নী নামক গোপী শ্রীকান্ত সেন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। হরি बोल। कात्यायनी नामक गोपी, कात्यायनी देवी नয়, गलत मत समझिए। कोई गोपी था भगवान का लीला में, उनका नाम था कात्यायनी। ठीक है, वही ये शिवानंद सेन का भागिना रूप में आविर्भूत हुआ। ठीक है, हाँ बोलिए मत। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु। ये गौर गणोदेश दीपिका क्या मिलती है आजकल भी, अवेलेबल है? है, जीजीडी है, ये महेश लाइब्रेरी में मिलेगा, महेश लाइब्रेरी में। ठीक है सत्यभामा माता जी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, महेश, ओके ओके, ठीक, थैंक यू। प्रभु प्रिय गोविंदानंद महाभागवत, प्रभु प्रिय गोविंदानंद महाभागवत, प्रभुर कीर्तनिया आदि श्री गोविंद दत्त, प्रभुर कीर्तनिया आदि श्री गोविंद दत्त। श्री चैतन्य वृक्षेर, ये ठीक बोल रहा हूं मैं? श्लोक कैसे दिया हुआ है इंग्लिश में? कुछ ट्यून मैचिंग नहीं हो रहा है। महाभागवत और श्री गोविंद दत्त ऐसे दिया हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में। यस प्रभु ऐसे ही दिया हुआ है। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, श्री चैतन्य वृक्षेर पंचविंशति माने 25 এবং ষড়বিংশতি 26 শাখা শ্রী গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্ত ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনের সঙ্গী। গোবিন্দ দত্ত ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তন দলের মুখ্য কীর্তনিয়া। হরি बोल। गोविंद दत्त महाभागवत और गोविंद दत्त, ये तौर ऊपर थोड़ा जोड़ देना पड़ता है। ভাগবত, হ্যাঁ গোবিন্দ দত্ত। গোবিন্দ দত্ত খড়দহের সন্নিকটে সুকচর নাম গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক আছে দিলীপ প্রভু, সুকচর মার্কেট है ना? हाँ आज आज पास ही तो আছে। हरे कृष्ण। देखना पड़ेगा उनका श्रीपाठ का, माने उनका जन्म स्थान वही है। श्री विजय दास नाम प्रभुर आखरिया, श्री विजय दास नाम प्रभुर आखरिया, प्रभुरे अनेक पुथी दियाছে লিখিয়া, प्रभुरे अनेक पुथी दियाছে लिखिया। सप्तविंशतितम शाखा श्री विजय दास ছিলেন श्री चैतन्य महाप्रभु लिपिकार। लिपिकार माने राइटर ना? क्या लिखा है इंग्लिश में? हाँ हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा है माता जी? हाँ, श्री विजय दास, the 27th branch, another of Lord's chief singers, gave the Lord many books written by hand. क्या सिंगर्स, क्या बोला आपने? Lord's chief singers gave the Lord many books written by hand. लिखते भी थे पर they used to sing also, singers. लिरिसिस्ट हमको लग रहा है, लिपिकार माने लिरिसिस्ट होगा। पता नहीं, SINGERS, चीफ सिंगर्स लिखा है। गायक गायक प्रभु हिंदी में भी गायक लिखा हुआ है। हरे कृष्ण বলছি সাদা বললাম এই গীতিকারই হবে, গীতিকার। गीतिकार माने तो लिरिसिस्ट। গীতিকার মানে যে গান লেখে, যে গান লেখে। लिरिसिस्ट है या नहीं है ये बोलिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? लिरिसिस्ट না ঠিক বলছেন, ঠিক ঠিক। তাহলে এত ভজরং যেটা বলছিস লিপিকার মানে লিরিসিস্ট, যে লিরিক্স লেখে। লিরিক্স মানে বোঝেন তো, গানের লিরিক্স। हाँ प्रभु, they did that work, पर इन्होंने singers लिखा हुआ है यहाँ पर, but and they wrote many books,
That means they were lyricists and singers also, both. হুম। তিনি স্বহস্তে মহাপ্রভুকে অনেক পুঁথি লিখে দিয়েছিলেন। তাৎপর্য, পূর্বে ছাপাখানা ছিল না এবং মুদ্রিত আকারে গ্রন্থও ছিল না, মানে জেরক্স মেশিন। তখন সমস্ত গ্রন্থই হাতে লেখা হতো। মূল্যবান গ্রন্থগুলি পাণ্ডুলিপির আকারে মন্দিরে অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখা হতো এবং কেউ যদি সেই গ্রন্থের বিষয়ে উৎসাহী হতেন তাহলে তাকে হাতে লিখে নিয়ে দিতে হতো। अगर अभी होता है ऐसा, आप में से कौन कौन चैतन्य चरितमृत पूरा लिख लेते? तुझे एल्बर्ट रोड में एक कॉपी है। अच्छा, एक जन लिखता है पूरा। नहीं प्रभु, हमने जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, हम लोग तो हाथ से सब लाइब्रेरी जाके हाथ से सब लिखते। उन्होंने कहाँ पर ये जीरोक्स मशीन कहाँ थी? When I was doing my graduation, सब कुछ हाथ से लिखते थे। कितना में? 1816। আচ্ছা। বিজয় দাস ছিলেন লিপিকার এবং তিনি বহু গ্রন্থ হাতে লিখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দিয়েছিলেন। ओके, ये लाइब्रेरी से लिखते थे या परीक्षा में बुक देख के लिखते थे आप? नहीं, लाइब्रेरी से। I used to do lot of reference work। अगला श्लोक 67 नंबर। रत्नबाहु बोली प्रभु तुइल तार नाम, रत्नबाहु बलि प्रभु थुइल तार नाम, अकिंचन प्रभु प्रिय कृष्णदास नाम। अकिंचन प्रभुर प्रिय कृष्णदास नाम। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিজয় দাসের নাম রেখেছিলেন রত্নবাহু, কেননা তিনি হাতে লিখে বহু গ্রন্থ তাকে দিয়েছিলেন। অষ্টবিংশতিতম শাখা কৃষ্ণদাস ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं, ये कोई दूसरा कृष्णदास है, ठीक है। তিনি অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত ছিলেন। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস। অকিঞ্চন শব্দটির অর্থ হচ্ছে এই জগতে যার কোনো সহায় সম্বল নেই, one who has no material possession। মানে ये लावारिस नहीं, one who has no कोई भौतिक संपत्ति जिसके पास नहीं है, पूरा हाथ खाली, ठीक है। लावारिस नहीं, लावारिस तो दूसरा चीज हो गया। खोला बेचा श्रीधर प्रभुर प्रिय दास, हरि बोल। यस यस, प्रभुर प्रिय दास, যাহা শোনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস। যাহা শোনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস। 29তম মানে 29 শাখা হচ্ছেন শ্রীধর, যিনি কলার খোলা। देखिए, खोला बेचा श्रीधर, कला बेचा श्रीधर नहीं, बहुत लोग गलती करते हैं। खोला, खोला। वो इट इज कोला बेचा और खोला बेचा। मुझे तो कोला बेचा पता था। कला पेड़ का जो खोल के बेचता है ना, वो नौका बनती है, नौका बनाते हैं सब। যিনি কলার খোলা ও পাতা বিক্রি করতেন তিনি ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় সেবক। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার সঙ্গে সবসময় নানা রকম পরিহাস করতেন। হ্যাঁ, भारती माता जी हैं। भारती माता जी है। ओके, आपको जो श्री मनीषा माता जी है। শ্রীধর ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যিনি কলা গাছের निर्गुणा नीलमणि माता जी, ये हम लोग का ड्रामा का में जो श्रीधर और महाप्रभु का बीच में वार्तालाप हम लोग ने गुरु सागर रोड में किया। শ্রীধর ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যিনি কলা গাছের বাকল দিয়ে খোলা তৈরি করে সেইগুলি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। খুব সম্ভবত তার একটি কলার বাগান ছিল, है ना। हम लोग जाते हैं ना श्रीधर का खेत के बीच में, मालूम है ना। ये कैसे जाए हृदयमय गोरखपुर, रास्ता कहाँ से है? जगन्नाथ मंदिर बगल से लड़की 1 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर होगा।
जगन्नाथ मंदिर जो है ना क्या? राजापुर, बाएं तरफ पीछे। उसी के बाउंड्री वॉल पकड़ के अगर पीछे जाइएगा ना, थोड़ा जाने से 10 मिनट, कलावेचा श्रीधर का एक उधर अभी भी मंदिर बना हुआ है, माने छोटा रूम बना हुआ है, खेत के भी, खेत नहीं, थोड़ा जंगल वंगल है आसपास, अभी तो सब बिल्डिंग हो गया होगा, ठीक है। खूब और वो बिल्डिंग संभवतः नहीं है, बिल्डिंग नहीं है वो। ये भुट्टा का गाछ सब लगा है। हाँ, आम का बागान है और खेती है। ভুট্টা। খুব সম্ভবত তার একটি কলার বাগান ছিল এবং সেখান থেকে তিনি প্রতিদিন পাতা, খোলা ও মোচা बाजारे बिक्री करते हैं। आप में से है कोई कोई डेली केला पत्ता में खाता है? कोई है? नहीं, कोई नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तार उपार्जनेर, अच्छा ये आप लोग आप में से कौन कौन ये मोचा और खोला माने थोर का आइटम बनाना आता है या खाता है? मोचा कौन खाता है डेली? अच्छा, माने डेली माने आता है, और मोचा बहुत लोग हैं, ठीक है, हम सोचा हिंदी भाषी लोग कोई होगा नहीं। अच्छा, थोर थोर, ओ करुणा माता जी, यू नो हाउ टू मेक थोर? हाँ, एक्चुअली मेरी बाई कभी कभी बना देती है, हम लोग उतना नहीं खाते, कभी कभी बनाती है वो। তার উপার্জনের অর্ধাংশ দিয়ে তিনি গঙ্গা পূজা করতেন এবং বাকি অর্ধাংশ দিয়ে তিনি জীবিকা निर्वाह করতেন। सोचिए, एक तो ऐसा आइटम बेच रहा है जो सबके घर में है, तो आप समझ सकते हैं उनका सेल्स टर्नओवर कितना होगा, और वो भी डेली जो टर्नओवर होता है उसका 50% गंगा पूजा में खर्चा कर देते। श्री चैतन्य महाप्रभु যখন কাজীর বিরুদ্ধে आईन अमान्य आंदोलन करें, आईन अमान्य आंदोलन के इंग्लिश में क्या बोलता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट इन डिफेंस ऑफ द काजी। तখন लॉ वायलेशन बोला है ना वो, लॉ वायलेशन, वही तो लॉ वायलेशन जैसे सिविल डिसोबीडियंस, माने गवर्नमेंट का आईन को आप अमान्य करते, माने मानबो ना, उल्लंघन किया, सब मशाल लेके गया काजी के पास। वही তখন শ্রীধর আনন্দ মগ্ন হয়ে নৃত্য করেছিলেন। হ্যাঁ, ইন্দ্রাণী মাতাজি বলুন। ওকে, কাজী দমনের পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধরের গৃহে গিয়ে তার ভাঙ্গা জলপাত্র থেকে জলপান করেছিলেন। हरे कृष्ण। घर में लोहा का टूटा हुआ एकदम जम धरा हुआ पुराना छड़ा हुआ एक ग्लास था, और वो भी ऊपर रखा था ना, ऐसे कुछ हिरण्य गौरांग प्रभु ऊपर में रखा हुआ था ना ग्लास, तो महाप्रभु ग्लास इस बार कहीं देखा नहीं, हो सकता है नहीं इस बार ग्लास होगा, लीला में कहीं कोना में रखा हुआ था, महाप्रभु निकाल के जल पिया। ये शेष मालूम तो था उधर। हाँ, उठा हुआ। कितना एम्बेरस लगेगा ना आपको, मत पियो इससे भाई, इससे मत पियो, ऐसे कुछ। तो श्रीधर को बहुत एम्बेरस लगा कि भगवान हमारा ग्लास में इतना मैंने बेकार ग्लास से पी रहा है, भगवान के लिए तो अच्छा ग्लास व्यवस्था करेंगे ना। তার ভাঙা জলপাত্রে থেকে জলপান করেছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীধর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে রান্না করে খাওয়ানোর জন্য সচী মাতাকে একটি লাউ দিয়েছিলেন, ঠিক আছে। প্রতি বছর তিনি জগন্নাথ পুরীতে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যেতেন। শ্রীধর ছিলেন বৃন্দাবনের कुसुमाशव नामक एक गोप बालक, ठीक है। कृष्ण लीला में कौन था श्रीधर, पूरा दिया हुआ है क्लियरली। कवि कर्णपुर तार गौरगंगेश दीपिकाय वर्णना करेছেন, होला होला बेचा तया खात पंडित श्रीधर द्विज आशीर ब्रजे हास्य करे जो नाम ना कुसुमा शब। कृष्ण लीलार कुसुमा शब नामक गोप बालक नवद्वीपे श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाय खोला बेचा श्रीधर হয়েছিলেন। প্রভু যার নিত্য
প্রভু যার নৃত্যলয়ে থোর মোচা ফল, বহুজার নিত্যলয় থোড় মোচা ফল, যার ফুটা লৌহ পাত্রে প্রভু পিলা জল, যার ফুটা লৌহ পাত্রে বহু পিলা জল, প্রভুর অতি প্রিয় দাস। আচ্ছা, প্রতিদিন পরিহাস ছলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধরের কাছ থেকে থোর মোচা ও ফল, ফল মানে কেলা, নিতেন এবং তিনি তার ভাঙ্গা লৌহ পাত্র থেকে জলপান করেছিলেন। ये तो हम लोग को मालूम है ये लीला में। हाँ चलाइए फटाफट प्रभु। एक की सामग्री का दुकान था। प्रतिदिन निमाई श्रीधर से केले की सामग्री खरीदने के बहाने श्रीधर से अद्भुत तर्क करते थे। इस तरह निमाई श्रीधर के द्वारा बहुत दिव्य रस आस्वादन करते थे। आओ निमाई आओ। श्रीधर, आज इन केले के पत्तों की क्या कीमत है? केवल 8 कौड़े निमाई, केवल 8 कौड़े। क्या? इतना महंगा? मैं तुम्हें इसकी आधी कीमत भी नहीं दूंगा। तुम लोगों को लूट रहे हो। नहीं निमाई नहीं, तुम यहाँ किसी से भी पूछ सकते हो। आमतौर पर केले के पत्ते का कीमत यही होता है। अगर तुम्हें कहीं और कम कीमत पर मिल जाए निमाई तो तुम ले सकते हो। अच्छा, इसे छोड़ो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम हमेशा हरि नाम का जाप करते रहते हो ना? हाँ हाँ, भगवान हरि के नाम मेरे जीवन का सबसे सुखद और आनंद देने वाली वस्तु है। तुम उन लक्ष्मीपति विष्णु की सेवा करते हो, लेकिन श्रीधर, मैं तुम्हारे लिए क्या किया है मुझे बताओ। तुम हमेशा भूखे रहते हो और तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं है। कम से कम शरीर निर्वाह करने के लिए पर्याप्त भोजन तो मिल जाता है ना निमाई। और देखो निमाई, मेरे पास कपड़े भी हैं, भले वो थोड़ा अच्छा नहीं और सही नाप के भी नहीं, फिर भी मेरे शरीर तो ढक देता है ना निमाई। लेकिन श्रीधर, तुम्हारे कपड़े कई जगह से फटे हुए हैं और मुझे पता है कि तुम्हारे घर के छत पर भूसा तक नहीं है। अपने चारों ओर देखो, यहाँ के नागरिक माँ काली की पूजा करते हैं और उनमें से किसी के पास भी भोजन, वस्त्र, आवास की कमी नहीं है। तुम अच्छे बातें कर लेते हो निमाई, लेकिन आमतौर पर यहाँ हर कोई एक जैसा जीवन जी रहा है। एक राजा सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए सुंदर महल में रहता है, जबकि एक पंछी छोटा सा घोंसला बनाकर बाहर भोजन ढूंढता है। लेकिन निमाई, मौलिक रूप में हर किसी का जीवन का दृष्टिकोण एक ही है। भगवान का व्यवस्था से हर कोई अपने कर्तव्य का पालन कराए निमाई। मैं भी अपना जीवन जी रहा और मैं इसमें संतुष्ट हूँ। हाँ श्रीधर, तुम बड़े पंडित हो। नहीं निमाई, मैं तो सिर्फ एक कुत्ता हूँ। हाँ, सिर्फ कुत्ता नहीं, बहुत चतुर कुत्ता। तुम बाहर साधु जैसे रहते हो, लेकिन श्रीधर, मुझे सच पता है तुम एक बहुत धनी व्यक्ति हो। तुम्हारे पास धन छुपा हुआ है। धन? निमाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है निमाई। मेरे पास पहनने की धन के कपड़े तक नहीं है। यदि तुम चाहते हो तो मेरे घर पे पुलिया पे आकर देख लो। जल्द ही मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि तुम लोगों को कैसे धोखा देते हो। हे ब्राह्मण, अपने घर जाओ तुम और मुझे परेशान करने बंद कर दो। श्रीधर के पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति। हरि बोल, एक्सीलेंट प्रभु। तो इस तरह महाप्रभु डेली
श्रीधर के साथ ये तर्क वितर्क करने में बहुत आनंद लेते थे। और ये भी लिखा है कि महाप्रभु श्रीधर के घर दुकान का केला पत्ता में ही सिर्फ डेली भोजन ग्रहण करते थे, और नहीं तो नहीं करेगा, ऐसा उनका फिक्स था। तो ये श्रीधर भी महाप्रभु का शाखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई जस्ट वांट टू नो, इसमें ये स्नैच फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड पल्प, पल्प क्या होता है? व्हाट इज पल्प? वही मोचाई होगा, पल्प जैसा है ना वो थोर फ्लावर तो मोचा हो गया, थोर होगा थोर। हाँ। पर वो तो कड़ा ही होता है, सफेद सफेद रंग का। इट्स नॉट लाइक पल्प, पर उसको ही थोड़ कोई पल्प क्यों लिखा है मालूम नहीं। वही होगा। और क्या है, कल केला में तो कुछ होता नहीं है। हाँ बोलून शिवशंकर प्रभु बोलून। প্রভুজি ফলটাকে আমার মনে হয় কলাটাকেই বলা হচ্ছে, ঠোঁটটা ফুল হবে, ঠোঁটটা ফুল হবে, ফুল মোচাটা ফুল, হ্যাঁ মোচাটা ফুল আর কলাটা ফল হবে। कलाटा केला भी हो सकता है माता जी, पल वो तो फ्रूट के अंदर आ गया, केला तो फ्रूट के अंदर आ गया, फ्लावर हो गया आपका मोचा, तो पल थोड़ी होगा फिर शायद, और तो कुछ है नहीं। और तो कुछ 69 প্রভুর অতি প্রিয় দাস ভগবান পণ্ডিত, প্রভুর অতি প্রিয় দাস ভগবান পণ্ডিত, যার দেহে কৃষ্ণ পূর্বে হইলা অধিষ্ঠিত, যার দেহে কৃষ্ণ পূর্বে হইলা অধিষ্ঠিত। 63তম শাখা হচ্ছেন শ্রী ভগবান পণ্ডিত। তিনি ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অতি প্রিয় সেবক, এবং পূর্বেও তিনি ছিলেন শ্রী কৃষ্ণের এক মহান ভক্ত, যার হৃদয়ে ভগবান সর্বদাই বিরাজ করেন। জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়, জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়, যার কৃপা কইল বাল্যে প্রভু দয়াময়, যারে কৃপা কইল বাল্যে প্রভু দয়াময়। 31তম শাখা হচ্ছেন জগদীশ পণ্ডিত, এবং 63তম শাখা হচ্ছেন হিরণ্য মহাশয়, যাদেরকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শৈশবে তার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। अभी ये लीला देखते हैं, कुछ दिया होगा। तात्पर्य, पूर्वे कृष्ण लीलाয় জগদীশ পণ্ডিত ছিলেন চন্দ্রহাস নামক নর্তক। হিরণ্য পণ্ডিত সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে একসময় নিত্যানন্দ প্রভু বহু অলংকার ভূষিত হয়ে তার গৃহে বাস করছিলেন। তখন এক দস্যুপতি সারা রাত ধরে সেই রত্ন অলংকার চুরি করার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হতে পারেননি। পরে से नित्यानंद प्रभु शरणागत है। तो शायद यही हिरण्य पंडित था। उस दिन लीला देखा ना हम लोग ने, वो विश्व बंगला हॉल में ये लीला दिखाया था, किस तरह एक डैकोइट का जो ग्रुप है वो नित्यानंद प्रभु से अलंकार चोरी करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पाया। कभी नींद आ गया, कभी भ्रमित हो गया। ऐसे देखा ना आप लोग ने? नहीं प्रभु हम लोग ने नहीं देखा। बहुत बढ़िया। এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে, এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে, বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে। এই দুইজনের গৃহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একাদশীর দিনে বিষ্ণুর নৈবেদ্য চেয়ে খেয়েছিলেন। একাদশীর দিন ভক্তরা উপবাস করেন, তবে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করতে কোনো বাধা নেই। विष्णु तत्व रूपे श्री चैतन्य महाप्रभु से दिन विष्णुर नैवेद्य ग्रहण करेছিলেন। इनका घर में बहुत अच्छा अच्छा आइटम्स बनता था। तो महाप्रभु ऐसा कुछ लीला है, बोला नहीं हम उनके घर में खाएंगे, ऐसे कुछ लीला है। प्रभुर पड़ुआ दुई पुरुषोत्तम संजय, प्रभुर पड़ुआ दुई पुरुषोत्तम संजय,
ব্যাকরণে দুই শিষ্য দুই মহাশয়, ব্যাকরণে দুই শিষ্য দুই মহাশয়, ত্রয়োত্রিংশতিতম এবং চতুর্থিংশতিতম 33 and 34 শাখা হচ্ছেন পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় নামক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দুইজন ছাত্র, যারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন। ঠিক আছে, স্টুডেন্ট তা মহাপ্রভুরা। তারা দুইজনই ছিলেন অত্যন্ত মহান। এই দুইজন পড়ুয়া, পড়ুয়া মানে जो बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं नहीं सिर्फ स्टूडेंट नहीं, पढ़ुआ माने एक्सेलेंट स्टूडेंट, माने जो पढ़ुआ बोलते ना बहुत पढ़ुआ है ये। स्टूडेंट माने छात्र, पढ़ुआ माने छात्र ना। এই দুইজন পড়ুয়া ছিলেন নবদ্বীপের অধিবাসী এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের প্রথম সঙ্গী। अच्छा, प्रथम संगी मैंने आंदोलन में स्टूडेंट लोग भाग लिया था, महाप्रभु जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, समझ रहे हैं? नहीं, आंदोलन में प्रथम संगी वही होगा ना, वही आंदोलन होगा या हरिनाम आंदोलन, आई डोंट नो। श्री चैतन्य भागवत वो तो काजी के विरुद्ध में जो हम महाप्रभु ने ये किया था ना, तो आंदोलन नहीं है, तो ये कौन सा आंदोलन होगा? हरिनाम आंदोलन, मैंने हरिनाम प्रचार में यही होगा। लेकिन प्रथम लिखा है प्रथम संगी। শ্রী চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে পুরুষোত্তম সঞ্জয় ছিলেন মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র, কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পুরুষোত্তম সঞ্জয়কে দুইজন পৃথক ব্যক্তি বলে বর্ণনা করে সেই ভুল সংশোধন করেছেন। इसका मतलब चैतन्य भागवत में भूल है। एनीवेज हम लोग को क्या लेना आगे। বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে, বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে, সোনার মুসল হল দেখিল প্রভুর হাতে, সোনাল মুসল হল দেখিল প্রভুর হাতে। চৈতন্য বৃক্ষের 35তম শাখা বনমালী পণ্ডিত এই জগতে অত্যন্ত বিখ্যাত। তিনি শ্রীমান মহাপ্রভুর হাতে সুবর্ণের হল ও গদা दर्शन করেছিলেন। शायद महाप्रभु उनको ये रूप दर्शन कराया था। ठीक है, एक हाथ में महाप्रभु का हल था, दूसरा हाथ में गदा था, इनको दर्शन कराया ऐसे रूप। বনমালী পণ্ডিত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলরামের ভাবে आविष्ट अवस्थाয় दर्शन করেছিলেন। एक्चुअली दोनों ही तो बलराम जी का बहुत फेवरेट है ना। बलराम जी अच्छा गदा भाजते थे, है ना इंद्रावती माता जी, और उनका हाथ में हल भी रहता है। श्री चैतन्य भागवतेर অন্তখণ্ডের নবম অধ্যায় এই লীলার বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রী চৈতন্য অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান, শ্রী চৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান, আজন্ম আজ্ঞাকারী তেহ সেবক প্রধান, আজন্ম আজ্ঞাকারীতে হো সেবক প্রধান। 37তম শাখা বুদ্ধিমন্ত খান ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। তিনি সর্বদাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন, তাই তাকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান সেবক বলে গণনা করা হয়। হরি বল। বুদ্ধিমন্ত খান প্রধান সেবক। श्री बुद्धिमंत खान ছিলেন नवद्वीपेर अधिवासी। ये मुसलमान नहीं है, ठीक है, ये बंगाली है। ये खान टाइटल देख के भ्रमित मत होइएगा। नवद्वीप अधिवासी তিনি, हम लोग का इधर में भी एक नवद्वीप अधिवासी है। কোথায় শ্রীবাসপুর नहीं, স্কুলে ছাড়তে গেছে মনে হয়। হরে কৃষ্ণ বাবু। আচ্ছা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধনবান ভক্ত। আচ্ছা, তিনি রাজ পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিবাহের আয়োজন করেছিলেন। আচ্ছা, एक घटक था ना बनमाली घटक, लेकिन यह तो लिखा है बुद्धिमंत खान। हमको जितना दूर याद है महाप्रभु का विवाह कोई बनमाली घटक था, वो आयोजन किया था। ठीक है, एनीवेज, एवं विवाहेर যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। হরি বল। वाह, बहुत बढ़िया। यस पंकज बाबू। प्रभु बुद्धिमंत खान उनका जो शिष्य था महाप्रभु का, उसने पूरा विवाह का खर्चा आयोजन करने का ये किया था। ये चैतन्य भागवत में आया था। हाँ, नहीं, यहाँ जो लिखा है ये दोनों का संबंध भी ठीक किया था, मैंने घटक। अच्छा,
हमको जितना दूर याद है कोई बनवाली घटक था। नहीं, घटक तो बनवाली था, ये इन्होंने पूरा विवाह का खर्चा पूरा ये किया था, इसलिए ये चलाया बोल के शायद लिखा होगा। ये तो भागवत, चैतन्य भागवत में आया था ये अभी। अच्छा, हिरण्मय गौरांग प्रभु এই বুদ্ধিমন্ত খানটি ছিলেন সেই কৃষ্ণনগরের রাজা। अच्छा, পরের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল, পরের জন্য সমস্ত খরচা বহন করবে। अच्छा, লীলাটা কি আছে আমি জানি না তো, কি বলুন বলুন বলুন। যখন আমাদের কৃষ্ণনগর যখন মঠে 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 যাওয়া হয়েছিল, তখন প্রভু প্রবচন দিয়েছিলেন যে ইনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সমস্ত খরচা বহন, মহাপ্রভু খরচা বহন করবেন। তো পূর্ব জন্মে ইনি কৃষ্ণ নগরের রাজা ছিলেন, কি বললেন? হ্যাঁ, কৃষ্ণনগরে যে ওই মঠের রাজা ছিলেন, যে মঠের রাজা ছিলেন, কি বলছেন বুঝতে পারছি না। মঠের রাজা ছিলেন ওই জায়গাটার মঠে, ওই ওই যে ওখানে মঠ হয়েছিল, উনারই একটা কাহিনী আছে। ওটা ওনার দ্বারাই উনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওই মঠটা। अच्छा, यस पंकज प्रभु। तो पहले सतयुग में वो सुवर्णसेन नाम के राजा थे। अच्छा, ये नवदीप महात्म्य में आया, बाद में उनको ये बुद्धिमंत खान के उसमें ये लीला में पार्टिसिपेट किए गौ महाप्रभु की कृपा से। और जब ये विवाह हुआ था तो मतलब वो इतना मतलब लेविशली ये विवाह करवाए थे महाप्रभु का, ये मतलब सब तरफ में ये हुआ था कि इतना अभी तक इतना लेविशली कोई विवाह कोई मतलब अच्छा धनिक लोगों का भी नहीं हुआ। और हर एक ब्राह्मण को 3-3 बार गिफ्ट, मतलब एक जैसे गिफ्ट देते थे उस समय, माला, चंदन और 2-3 आइटम। तो बोले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार सबको दो, ताकि लोग वापस दूसरा नाम से मतलब दूसरा तरह से छुप के वापस लेने का इच्छा नहीं रहा, ऐसा भी उसमें आया था। बहुत बढ़िया। ओके, तो ये বিয়েতে যেন 4-5 খানা বিয়ে হয়ে যাবে এরকম। अरे वाह। तो ये नवदीप लीला महत्व, ये हर एक दिन दोपहर 12 से 1 पंकज नेत्र राजेश प्रभु ऑनलाइन करा रहे हैं, ग्रुप में मैसेज भी आ रहा है, आप लोग ये अटेंड कर सकते हैं। महाप्रभु যখন বায়ু ব্যাধি হয় তখন তিনি তার চিকিৎসা করেন। বায়ু ব্যাধি মানে गैस प्रॉब्लम। अच्छा, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास करा दिया। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा, इसमें ये सब झमेला नहीं। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনে তিনি ছিলেন নিত্য সঙ্গী। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে শ্রী চৈতন্য महाप्रभु যখন মহালক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করেন, अरे ये नाटक तो देखना ही है। ये नाटक के बारे में किसी को कुछ मिला? ये नाटक के बारे में एक ही व्यक्ति है जो जुगाड़ कर सकता है, वो है अद्भुत चरण प्रभु। देखते हैं प्रभु कृपा करते हैं या नहीं। শ্রী চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন মহালক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করেন, তিনি তখন তার বস্ত্র ও ভূষণ আদি সংগ্রহ করেন। वाह, মানে ড্রামা সামান সব লীলা महालक्ष्मी का भूमिका। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরীতে ছিলেন, তখন রথযাত্রার সময় তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। यस, काहुत पिन दे दीजिए माता जी। ठीक है, ये है चंद्रशेखर आचार्य, नहीं सॉरी, ये है बुद्धिमंत खान। गरुड़ पंडित लय श्रीनाम मंगल, গরুড় পণ্ডিতালয় শ্রীনাম মঙ্গল, नाम बोले विश्व जारे ना करिल बल, নাম বলে বিশ্বজারে না করিল বল। 763তম শাখা গরুড় পণ্ডিত নিরন্তর ভগবানের নাম গ্রহণ করতেন। হরি বল। নামের বলে সাপের বিষ পর্যন্ত তার উপর ক্রিয়া করতে পারেনি। হরি বল। বাহ। গরুড় পণ্ডিতকে একবার এক বিষাক্ত সাপ দংশন করে, কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে সেই বিষ তার উপর ক্রিয়া করতে পারেনি। গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস, গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস,
অক্রুর বলি প্রভু যারে কইলা পরিহাস। অক্রুর বলি প্রভু যারে কইলা পরিহাস। 38তম শাখা গোপীনাথ সিংহ ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অতি বিশ্বস্ত সেবক। অক্রুর বলে সম্বোধন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে পরিহাস করেছিলেন। গৌরকর্ণদাস দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে তিনি ছিলেন অক্রুর, মানে পূর্বজন্মে মানে কৃষ্ণ লীলায় তিনি অক্রুর ছিলেন। ঠিক আছে, গোপীনাথ সিংহ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লাহরি। অমৃত লাহরি বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। গৌরাঙ্গ স্বামী কি জয়, শিল প্রভুপাদ জয় জয়।